ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, आवाम की तरफ आते हैं। عوام تو بالکل ہی مری ہے بیچاری۔ बीबी आप क्या कहती हैं? عوام نو تے انہاں نے مار ہی دتا آفتاب صاحب، کی کریے میں تانوں کی دسا کہ نہ اسے کوئی چنگی سحری پہ کرنے تے نہ ہی افطاریاں پہ کرنے ہیں۔ عمران خان حکومت بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھ چک چک کے دعاواں کیتیاں سن کہ عمران خان دی حکومت آوے، مینوں لگدا ہن سن پھر ہاتھ چکنے پینے نے۔ نہیں ویسے عمران خان کیا کرے؟ بھائی تینوں کی پتا وے، تیرے گھر جدو چولہا نہ بلے وے، تیرے گھر پکوڑے نہ بنن وے، تیرا بندہ جدو سڑک تے جاوے پٹرول مک جاوے جیب چ پیسے نہ ہون، پھر میں تینے پوچھا کہ کار کیویں چلائی جائے۔ آفتاب یہ پہلا رمضان تو نہیں کہ قیمتیں یوں بڑی ہیں، ہر سال جب رمضان آتا ہے قیمتیں یوں شوٹ اپ کرتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یعنی آلو 2 روپے کلو بھی کوئی نہیں لیتا تھا، جی سر 20 روپے تک پہنچ چکا ہے ابھی منڈی کے اندر سر۔ اور آج میں نے لیمو لیے ہیں آج دوپہر، زندگی میں پہلی دفعہ۔ اور یقین کریں اس نے کہا 100 روپے پاؤ، میں نے کہا واٹ 100 روپے پاؤ؟ انہوں نے کہا انگلش نہ بول ماما پیسے کٹ۔ 400 روپے کلو جی، توبہ۔ شکنجی بھی تو پھر نہیں پینی، بڑا پرانے گھوڑر کا منہ ہے۔ تجھ میں دسو یہ بزنس مین دا کی قصور؟ بزنس مین تو میں نہیں کہتا، لیکن منافع خور بزنس مین اصل فساد کی جڑ ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ کرسچن ورلڈ ہو، مسلم ورلڈ ہو۔ کرسمس آتی ہے قیمتیں ایک دم نیچے آ جاتی 70-80% تک، وہ تحفے کے طور پہ یعنی پورے سال کا اپنا مزہ لیتے ہیں کہ یار اللہ نے ہمیں اگر اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے تو ہم بھی کیوں نہ لٹائیں، اور اس لٹانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ یہ غریب ہیں، یہ سنگ دل ہیں، تنگ دل ہیں جی۔ یہ جتنے غریب یہ لوگ ہیں نا، شاید ان کا دل بڑا ہوتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، چاہے چھوٹا سا ڈھابا بھی ہوگا نا کسی کا، وہ کھلے دل سے لٹائے گا۔ آفتاب بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس میں زیادہ منافع ہوتا ہے آپ کو، اگر آپ زیادہ سیل کر لیں، منافع کم کر لیں، لوگوں کو زیادہ سہولت دیں، دعائیں لیں، برکت ہے نا، برکت ہے، کیونکہ آپ کا اعتبار ہے اس قوت پر جس کے ہاتھ میں یہ سارا کنٹرول ہے۔ اللہ تھوڑا پلا کرے، انی برکت ہے پی۔ اگر کوئی بندہ 10 روپے منافع لے رہے نا، میں 8 لینا۔ آپ آنیسٹلی بتائیے آپ کے دل کے کتنے وال بند ہیں؟ پھر دو نہیں سٹینٹ بند پہ جی، یہ 4 سیر دے بھی باندھ رہے سر۔ وہ کہتا ہے مجھے 2 سٹینٹ پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ حالانکہ میرے حساب سے تو اس کو اب تک 2 درجن سٹینٹ پڑ گئے۔ پتا انہوں پیپ بھی پہ آ گئے۔ سٹنٹ ایک قسم کا پائپ ہی ہوتا ہے۔ ہاں سٹینٹ جو ہے پائپ ہی ہوتا ہے، ایک ببل ہوتا ہے، وہ کھول دیتا ہے اور آپ کی پیپ جو ہے جسے وہ پیپ کہہ رہے ہو کھل جاتی ہے۔ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਲੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। یہ پانی لیٹ چکتا سی، یہ بھوکی بھی پاٹی ہے۔ اور ابھی کس خشوع و خضوع کے ساتھ بتا رہا ہے؟ بھائی کوئی ہولے لفظ بولو بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کس ذوق و شوق کے ساتھ بتا۔ انج مرے نہ ہوگی خوشبو آنا۔ میں اور بکواس بند کر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ براہ راست بات نہیں کر رہا، میں آفتاب سے بات کر رہا ہوں۔ ہر سال عمرے پہ جاتا ہے ہمارا خون چوس کے، اتنا بڑا پیراسائٹ جو ہمارے خون پہ پل رہا ہے، اور بے شرمی کی انتہا دیکھو، کہتا ہے کرم۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تے خانہ ہی خراب ہونا جے۔ تیرا اپنا بیڑا کر کو دیکھ نہیں بیٹا تو تسی نہ لو کبھی۔ دیکھے گا پتر، میں کو تھوڑے کڈے کھڑکا کے کہنا بھی ساڈے کول سامان لو۔ بندہ جوڑے پلی پلی تے رام نو لاوے کپا، ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਖਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। بڑی اعلیٰ بات ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے جوائی جوا کھیلتے ہیں ان کی کمائی سے۔ میں ایک ایسی شاندار مثال دے سکتا ہوں، اس وقت میری بڑی خواہش ہے، لیکن بعض مصلحتیں روکتی ہیں کہ 2 جوائیوں کو، جمائی جس کو ہم کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ جن کے سسروں نے بڑا پیسہ بڑی محنت سے اکٹھا کیا، نہ انہیں نیک نامی ملی نہ سکون ملا، اب ان کی جوڑی ہوئی دولت ان کے جمائی لٹا رہے ہیں۔ یہ رب نو پتا کہ کی ہونا، تسی نہیں فیصلے کر سکتے فلانے دا جمائی تے فلانے دا یہ۔ اچھا جی یار تم چپ رہو۔ اچھا جی آپ ہیں پرانے نواز لیگی ورکر، جی کیا کہتے ہیں آپ جو صورتحال ہو رہی ہے؟ بڑا غرق کرتا ہے انہوں نے سارا کچھ A1 ٹھیک ہے سی، انہوں نے کھانا خراب کرتا ہے۔ کس نے؟ انہوں نے کون؟ وہ ساری جی گورنمنٹ نے عمران خان دی بزدار دی حکومت ویکھ لو، لگتا گملہ دوڑیا پھر رہا، ادھی بوری کھانڈ دی دیکھو نا، اس طرح دی۔ غریب لوگ ایسا وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا پنجاب چ۔ تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں نا۔ نہیں پوچھ تو وہ رہا ہے، انہوں کو دس نہیں رہا۔ ویسے باقی اسے بتا کوئی نہیں رہا، وہ جاننا تو چاہتا ہے۔ اچھا یار ایک سوال ہے، ہاں جی جلدی کرو۔ تو میں نہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، ٹیکس کتنا دیتے ہو؟
सर ये मेरे अकाउंटेंट से पूछे, मुंशी से पूछे, ये सवाल के जवाब मैं दूंगा आपको। यही बात मियां नवाज शरीफ ने भी एक दफा की थी कि ये मेरा काम नहीं बताना, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा। और मौसूफ 5,000 रुपया सिक्का राजुल वक्त टैक्स दिया करते थे। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। मैं जनाब दसना वा याद करो वक्त जदों मियां शहबाज शरीफ ने सस्ती रोटी की थी और आवाम किड्डी सुखी थी। 250 का 20 किलो आटा आंदा सी। इन्होंने आके के कर छड़िया है। नून लीग दे कारनामे के याद करावां। दुनिया पे तराने गांधी है, पुलां बनाइया, सड़कां बनाइया। किधर है सस्ती रोटी? और जनाब किधर बताओ? तो तेनों पता ही नहीं, मैं जनाब पढ़ा नहीं जवाब दो ना, बाकी साहब पूछ रहे हैं। ऐसे ही खाम खा यावा गोई कर रहे हो। नहीं जनाब, पता नहीं है कि गालां तो नहीं काट रहा बंदा। कौन सी गाली? यावा कोई कह रहा है जनाब। यावा गोई है, ये पढ़े लिखों की फ्रेज है। चलो रहने दो तुम। मार्केट फोर्सेस, कोई खिलजी आएगा, इस मोटे के कान कटे ना, इसका नाक कटे। सिर्फ कान और नाक? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ਇਹਦਾ कीमा कर देगा वो आके, इसे कोफ्ते बनाएगा। इसको किसी बहुत, और ज्यादा दूर नहीं है वो वक्त, खिलजी आए ना आए, इजराइल तो आ रहा है ना जी, उसने आके ड्रैग करके ले जाना है, खींचता हुआ, रस्सी पड़ी होगी, और क्या होगा, एक बहुत बड़े श्रेडर में डाला जाएगा इधर से, और फिर दूसरी तरफ से इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। कीमा कीमा कह रहा है ना, बारीक पसंद करोगे या मोटा? नहीं मैं कहना मोटा ही वो करना। जानता आपकी बातें कोई इतनी ऑथेंटिक बातें नहीं है। ਉਹ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਾਬ, ਬੰਦੇ ਫੜੀ ਦੇ ਆ। तुम्हें भी पकड़ेगा, तुम्हें तो चुटकी से पकड़ेगा खिलजी, और तुम्हारी टांगे जब हिलेंगी ना, कांपेंगी, फिर तुम्हें पूछा जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ इन्होंने ਤੋਂ खिलजी फड़ेगा तो मेरी अली इजराइल। ये कि तुम खिलजी के बस का रोग ही नहीं हो, तुम कैसी इजराइल का हो? ਇਹ ਖਿਲਜੀ ट्रैक्टर वाला ना जी। नहीं, वो स्टालिन था, जो टांगे बीच में से चीर देता था। वैसे तो उस लायक भी है ये टैक्स भी अवेड करता है। चलो ये हो गया रॉबरी अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट को रॉब करता है ना, स्टेट के ये गमश्ते नालायक करप्ट की कह रहा गमश्ते जो नंगे आदमियत हैं, उस किस्म के अफसर उन्होंने मुकर्रर कर रखे हैं। चलो स्टेट अपना खमियाजा भुगत रही है, इनडायरेक्टली वो भी हम ही भुगतते हैं, लेकिन जो हशर इन बेचारों का हो रहा है, और रमजान के नाम पे आए ਓਏ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਦੇਖੋ रमजान बाजार कद लिए लाया, यूटिलिटी स्टोर तो सौदा लवो जाके। आप रमजान बता नहीं रहे थे, वो उस वक्त सोए हुए थे तुम जी, क्रिमिनल हो तुम अपने जराइम पे पर्दा डाल रहे हो, वो बता नहीं रहे थे अब्दुर्रहमान साहब जी। तो रमजान बाजार का भी स्कैंडल आ रहा है। पहले नून लीगी अपने लोगों को ये ठेके दिया करते थे, इस दफा पीटीआई के लोगों ने अपने लोगों को ठेके दिए हैं। बस वही फिर अशर होगा। अगर पीटीआई में भी वही कुछ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है खान साहब को अब और कुछ नहीं, हाथ में सोटा पकड़ के बाहर निकलना चाहिए। ਉਹ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਆਣਗੇ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਲੱਭਦੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਵੜ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। वो कहते हैं ना, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ तो करो। इंसाफ करोगे। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुद हजरात हमारे साथ रहिए। एक शेर हो जाए फिर। जी अता करें। ना कि उनकी गली में एक काम से गए थे, फिर हर काम से गए। जिस कदर डिसइक्विलिब्रियम का शिकार तुम्हारी जिंदगी है, वैसे ही साकतुल वजन तुम्हारी शायरी है। ये मेरा जूनियर भी है तो शायर भी है। और बहनोई भी है। नहीं और सर, यदि भैन एडी माड़ी है, यकीन करो। वेलकम बैक। तो रमजान से पहले दुकानदार कहना शुरू हो गए थे कि जितनी शॉपिंग करनी आप कर लें, रमजान में महंगाई ज्यादा हो जाएगी। ਆਏ ਪੂਤੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ। तो घर में क्यों नहीं उगाते हो? पुदीना उगाने में कोई प्रॉब्लम? एक मिनट 3 नंबर ले जाएगा, इस सोफे से उगा दिए। वही गमलों में उग जाता है, नंबर ले गमलों में टमाटर उगते हैं, छत पे उग जाता है। किचन गार्डनिंग सर बहुत अच्छी चीज है, अगर हमारी कौम करना शुरू कर दे। नालायक है ना, कुछ नालायक भी हैं। इतना कुछ किਵੇਂ बीजेंगे? सब्ज मिर्च बीज सकते हैं, बैंगन आप घर के अंदर उगा सकते हैं, खीरे आप उगा सकते हैं। कह रहे हो। आप क्यों नहीं उगाते? सब बड़ा कुछ, गमला सब जो है। कुछ उगाओ घरों पे। मंडियां बंद कर दो, मंडियां बंद कर दो। जो जिम्मेदार है उसका खाना खराब कर दो। अगर थोड़ी सी भी सेंस होना इन लोगों में, या इनके नेताओं में, इनके लीडरों में, और इवन मीडिया में जो इनको गाइड करने का दावा करते हैं हम जैसे लोग, तो बड़ी आसानी से इस जैसे मोटे का मक्कू ठप्पा जा सकता है। पता है कैसे? एक तो किचन गार्डनिंग को फरोग देना चाहिए, दूसरा खुदारा ये बड़े बड़े शॉपर्स के अंदर स्टोर मत कीजिए। अगर आपको एक दिन में 1 दर्जन अंडे चाहिए, तो 6 दर्जन क्यों ले रहे हैं आप?
पड़े रहने दें दुकान पे, फिर हम देखेंगे कि वो कैसे मुनाफाखोरी करता है। वो नीचे ला के प्राइस पे बेचेगा। उसने तो आज बेच दिए, अगले दिन कहेगा जनाब वो जो था वो ले गए लोग, अब आप आए हैं बदनसीब, अब आपके लिए ये और महंगा। वो 6 दर्जन अंडे 8 दर्जन की कीमत पे बेचेगा। तो भैया जो हमारे पास आते हैं, किसी की मिन्नत करते हैं हम लोग के 8 दर्जन ले जाओ, 6 दर्जन, जितनी किसी की जरूरत है वो ले जाते। बेतवक्ली है ना हमारे अवाम की, हमारे सेंसिबल लोगों की। इन्हें तो खैर पता ही कोई नहीं ना, जो सेंसिबल लोग हैं वो भी बेतवक्ली करते हैं कि पता नहीं फिर टाइम मिलता है कि नहीं, बच्चों की तरफ से, ट्यूशन की तरफ से, गाड़ी अवेलेबल होगी कि नहीं, नौकरी की तरफ से। भाई तुम एक रूटीन बना लो, घर में जो एक्सरसाइज करते हो वॉक कर लो, मार्केट जाओ, एक छोटा शॉपर डेली लेकर आओ, एक तो फ्रेश चीजें मिलेंगी और तुम्हें मजबूर नहीं होना पड़ेगा, इस जैसे मोटे की डिक्टेशन नहीं लेनी पड़ेगी। यार तेरना आगे ऐसी भी जलील हो इस जैसे मोटे की। और ये एक बंदे के करने से नहीं होगा। तसव्वुर करें कि जब 7-8 करोड़ लोग इनकार कर दें कि हमने इसके स्क्रिप्ट पे अमल नहीं करना। ये सब कुछ वो करवाता है। आपको पता है सारा साल दस्तरखान लगता है मेरा। यार तुम्हें अब कैसे समझाएं, कैसे समझाएं? कोई होर गल्ला करने किड्डा सोहना एसी चल रहा अंदर है सुबह। यार को महंगी चीज बेचदा, सानू शिकायत करो, अगर उसी दुकान उदी ना सील करिए सानू नौकरियों कर देना। ये महंगी चीजें बेचता है, तुम कसम उठाओ तुम्हें कितनी मंथली जाती है इसकी तरफ? कोई नहीं पाए ना तुसी एवं सानू टीवी ते बुला के जलील कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हैगा। कसम उठाओ ना कि तुम मंथली नहीं लेते। एवं कसम उठाई असी इत्थे अदालत च बैठे हैं। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? कसम उठाओ ना। अच्छा मेरी गल सुनो, बच्चे तक ना पहुंचो। अच्छा तुम बताओ। बच्चे मेरे 4 है लेकिन कसम मैं कोई नहीं चुकनी। ये ऐसे ही कहेंगे जी हम मंथली नहीं लेते, मिठाई ले लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, ये सब बकवास। मिठाई का रिवाज भी नहीं है, अब तो रिवाज आ गया पेटियों का। जिस फ्रूट का सीजन है उसकी पेटियां साहब के घर चली जाएंगी। अरे मेरे भाई, तोहफे तोहफ देना ये सवाब है। इन्हें कितने तोहफे दिए तुमने? इन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये आए मेरे पास, मैं अगर इनको तोहफा ना दूं। और जनाब याद करो मेरे कायद नू है जी, इन्हां इदारियां नू, इन्हां सरमायादारां नू नथ पाई हुई थी उन्होंने, जिवें वो गए ने इन्होंने अखां खोली हैं। महंगाई एडी पहले नहीं थी। सबसे बड़ा सरमायादार तो तुम्हारा कायद था। और जनाब बिजनेसमैन थी, ए ना करदा तो और के करदा, वो प्रोफेसर थी। जब यहां से भेजा था ना मुशर्रफ ने जद्दे, तो छोटा मियां वहां पे एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गया। वो बिजनेस पढ़ाया करता था। जनाब मेहनती लोग ने, मेहनती। अच्छा यकीन करो रोजे पहले आउंदे हुंदे सी, मेरी नानी ने राती 1 बजे उठ जाना, ओए होए देसी घ्यो दे पराठे पकाने और 2, 2.5, 3 बजे लंगर खा के सो जाते सी लोग। अब बात को ड्रैग करके दूसरी तरफ ले गया ये बेशरम ये नहीं बता रहा कि इसके घर कितनी पेटियां जाती हैं, कितने पैसे जाते हैं। तेरे दादे ने उठ के सवेरे सवेरे और रिड़का लाना सुबह सुबह ऐसे करके आप लाउंदे सी बुजुर्ग। लस्सी ਤੁਹਾਨੂੰ पता इन्नी निकलनी, मक्खन, और रोजा रखने का मजा आंदा सी, अफतारी तक भुख नहीं सी लगती। वो करप्ट नहीं ना होगा तुम्हारा दादा? ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਈ। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम करप्ट हो। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀ ਫਿਟਕਾਰ ਪਈ ਮੇਰੇ? हाँ जी, ऐसी वैसी ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰਤ ਆ। हाँ जी, इससे भी ज्यादा ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? लानती। वो भी जल्दी हरूफ। अच्छा सर मेरी एक गुजारिश है। बक बक बंद करो, मैं सवाल लेने लगा हूं जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम महंगाई पर किस तरह से काबू पा सकते हैं? महंगाई पर काबू? महंगाई के जिन को बोतल में बंद करना पड़ेगा, इस जैसे जिन को जेल में बंद करना पड़ेगा। महंगाई पर ऑटोमेटिकली काबू पा लिया जाएगा। मैं दसना जनाब, जदों मेरे कायद सन ते पेट्रोल 68 रुपये थी, हुण वेखो किथे चला गया। मोटरसाइकिल लैके फिरी जाना, पैसे भी जेब विच ने, पेट्रोल नहीं मिलता पिया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਵੀ 112 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਿਆ ਹੈ। हाँ जी, उन्हें ही तुहानू पट्टियां पढ़ाइयां ते महंगाई वधाई जांदे हो। और तुम्हारे लीडर का हलीफ है, साथी है वो। अजकल ते ओही तड़ियां पे लांदा है उन्नू। ये ड्रामा है, समझा करो। ये तरीका वारदात है कि तड़ियां लगाए जाओ, अंदर से जफियां पाए जाओ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਖੋਂਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਫਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਰਿਜ਼ਕ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ? गरीब है ना ये, आप इनके मुकाबले में उमरा हैं, आप अमीर लोग हैं, यकीन कीजिए आपके मुकाबले में ये इतना गरीब है। गुर्बत और अमारत का ताल्लुक दिल से होता है ना, दिल की कुशादगी से। इसका विड बड़ा है और दिल छोटा है इसका। आफ्ताब, बात पता क्या है मेरे भाई, अपना काम करो, रिस्क हलाल कमाओ और अल्लाह के रास्ते में दो। हलाल ही कमाओ ना। तो अल्लाह ये कहते हैं जैसे मर्जी कमाएं। हाँ जी, हम अल्लाह की राह पे भी तो खर्च कर, अल्लाह को नहीं जरूरत यार गंदे पैसे की। उस जात का जरा तसव्वुर लाओ, वो पसंद करेगा तुम्हारे पैसे को? वो तो तुम्हारी रस्सी दराज कर रहा है।
मैं बार बार कह रहा हूं तुम्हारा संगल दराज कर रहा है किसी हाथी के बच्चे। क्या फायदा उस करोड़ों अरबों रुपए का कि लिबास तुम्हारा ये है। सादगी, लो सादगी अल्लाह को पसंद है। बड़ा सादगी इसलिए कि नैब वालों की नजर ना पड़ जाए। हाँ जी। इन लोगों ने भी अभी सूट पहनने शुरू किए, देखो ना उसकी सॉक्स देखो, ये बड़े डिजाइनर सॉक्स पहनते हैं। यार एक तो कोई फैशन ना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਪੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆਲਮ ਹੈ। मैं अपना अंजाम जानना, मेरी बात ना, मैं नहीं बोलूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं एक लफ्ज नहीं अदा करूंगा, लेकिन अगर तुम कहो कि तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है, मैं बताऊं क्या ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਫਾਲਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜ ਪਾਟੇਗੀ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। गरीब आदमी रोजा रख लेना, खोल नहीं सकता। गरीब आदमी ना रखे रोजा, अगर नहीं रखे ब्रो, ना रखे रोजा। ये आजकल कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, ये रोजे तो गरीब गुरबा रखते हैं। मैं मस्जिद में 4 टीन दे आया था, 6 थैले दे आया था, लोग रखेंगे रोजे। इन मुनाफाखोरों की ये साइकी है। तुम रोजे रखते हो? नहीं, देखिए झूठ नहीं बोलना, अल्लाह को जान देनी। मैं रोजे रखवाता हूं क्योंकि मैं बीमार हूं, रख नहीं सकता। वाह 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 वाह, किस जुस्तजू में जिस्म जलाते हैं रात दिन, सच पूछिए तो इसकी हमें भी खबर नहीं। वाह वाह। एक शेर हो जाए फिर। ये अता करें ना कि उनकी गली में एक काम से गए थे, फिर हर काम से गए। क्या फजूल था। जिस कदर डिसइक्विलिब्रियम का शिकार तुम्हारी जिंदगी है, वैसे ही साकतुल वजन तुम्हारी शायरी है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੈ और बहनोई भी है। ਨਹੀਂ और ਸਰ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਏਡੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਔਰ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਦਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਉੱਤੇ ਮਲਾਈ ਹੋਣੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਲਾਈਆਂ ਹੀ ਮਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। क्या वजह क्या है? इतना फर्क कीमतों का तो नहीं था। काम क्या करते थे तब? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਸਨ ਜਨਾਬ। लहरें बहरें तो होनी ही थी। ये तो फिर वही कार्टेल है ना। बस फिर मौज करो, आप इंतजार करो, अगर कभी तुम्हारी पार्टी आई, फिर उसने मेरिट की धजियां बिखेर कर तुम्हें अगर दे दिया ठेका, तो फिर लहरें बहरें हो जाएंगी। सर ठेकों का हाल सुन लें। लाहौर में एक पेट्रोल पंप था, वो 6,500 रुपए सालाना पर था। जब उसको ऑक्शन की गई तो वो 3.5 करोड़ रुपए सालाना पे गया है। ये लिबर्टी वाला सर नहीं, वो तो और है इस तरह वो के। तो हजरत साहब का है ना। हाँ जी हजरत साहब। देखो हमारी वजादारी देखो, हमने कभी उनसे बाबा जी से पूछने की भी जहमत नहीं गवारा। वो कह देते थे मेरे बेटे का है, मैं नहीं जानता इसको। अलबत्ता जब उसकी रिन्यूअल का टाइम आता था तो बाबा जी खुद आते थे। फिर एक ताज़ा रिसर्च मैंने पढ़ी है कि जो इस्लामी कवानीन है खिलाफत राशिदा के ज़माने के, जैसे उमर्स लॉ नॉर्वे में है, बच्चों को जो दूध देने वाला, तो जो इस्लामी कवानीन है वो कितने मुसलमान मुल्कों में इस वक्त नाफिज हैं? पता चला कि सारे गैर इस्लामी मुल्क जो हैं, आयरलैंड के बारे में जरा पढ़िए जी, वो सारा कुछ वहां पे नाफिज है। देखिए, और एक मुल्क मुसलमानों का उसमें आता है मलेशिया, कि जिसमें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस तरह के कुछ बुनियादी बातें। जी जी जी। वो यार हर महीने उम्रा करता है, हर साल हज करता है, और तुम्हारे मामलात ठीक नहीं, इबादत अल्लाह को नहीं चाहिए। छोड़ दो, ये अल्लाह को पता, तुम नहीं इसका फैसला कर सकते कि मेरे मामला ठीक नहीं है। तुम कौन होते हो मेरे मामला का बताने वाले? हमें मेरी एक मिनट बात सुने भाई, मेरी एक मिनट बात सुने। आप ये छोड़ के ना ये मुल्क जहां आप बैठे हुए हैं, मलेशिया चले जाएं आप। वो ये मेरा मुल्क है, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? तो करो ना इस मुल्क को ठीक। मिसालें देते हो मलेशिया की, करो इस मुल्क को ठीक करेंगे। तुम जैसों को एक्सपोज करके अंदर करवा के 30 साल कुछ नहीं होता यहाँ। 30 साल इंशाअल्लाह ताला। तुम कह रहे हो कुछ नहीं होना, भी नहीं होता। तुम्हारा बाप भी यही कहता था कुछ नहीं होना, फिर हो रहा है ना कुछ। हाँ जी। तो 30 इयर्स इसकी उम्र रह गई है मेरे हिसाब से, कुछ 7-8 साल और। आफ्ताब टैक्स पता क्यों नहीं देते? मैंने कई तुजार से पूछा, कई बिजनेसमैनों से पूछा कि यार तुम टैक्स क्यों नहीं देते? वो कहते जी हम क्यों दें, हम ज़कात देते हैं, हम वैसे मदद कर देते हैं, चैरिटी। मैं क्या सब गलत है। पता है क्यों? उनके पास जस्टिफिकेशन जो है ना वो काफी तगड़ी है, इसलिए कि गवर्नमेंट खुद करप्ट है, उसके उमाल ये बैठे हैं, ये दोनों देख रही हो ना, मिसाल तो ये है। कोई नेक परवीने हुकूमत नहीं भेजती, टैक्स कलेक्टर्स इस जैसे होते हैं, कोई जरा और प्रोफाइल का होता है, कुछ लो प्रोफाइल का होता है। हुआ मोस्टली करप्ट करते थे, अब आकर हालात बदल रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इस किबले को
यही हुकूमत दुरुस्त करेगी, ना करेगी तो अगली करेगी। क्यों? इस मुल्क के, इस खित्ते के सारे राक्षस हुकूमत नहीं अल्लाह की पकड़ में आए हुए। अच्छा जनाब, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, आपके लत्ते मजीद लेते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख्वातीन हज़रात, स्टे विद अस। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रही हैं साइमा मुमताज। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी को हालात क्यों बताए, किसी के एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी के एहसान क्यों उठाए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझ को दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, अता किया मुझ को दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ थी काबिल, मैं इस करम के कहाँ थी काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है,
सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहे नजीर कहे ये इन्हें सिराजे, मुनीर कहे ये बशीर कहे नजीर कहे ये इन्हें सिराजे, मुनीर कहे ये जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। जज़ाकल्ला जी, जज़ाकल्ला, जज़ाकल्ला। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। करंट वाली बिल्ली क्या होती ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਲਾ ਮਨਾ ਚੰਗੜਾ ਦਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੀ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਪੈਂਟ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ। वेलकम बैक जी। खबर है कि सिल्वेनिया का रुकने असेंबली मुफ्त सैंडविच खाने पर मुस्ताफी। ये बेचारा बड़ा बदनसीब निकला। कहता है कि अगर मैं 3 मिनट वहां पर अपने आप पे कंट्रोल कर लेता, क्यू में लगा रहता, तो शायद ये नौबत ना आती, मुझे इस्तीफा ना देना पड़ता। वो गुस्से में आ गया। वो गया कहीं सैंडविच पार्लर पे, उन्होंने कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई। कुछ इन्हें ये भी, हमारे यहाँ ही नहीं हर जगह जाहिर है एक प्रोटोकॉल तलब नजरों से सब देख रहे होते हैं। यार मैं तुम्हारा नुमाइंदा हूं, मुझे तुम पहचान ही नहीं रहे। दरखोरे इतना नहीं समझा, खड़ा रहा, उसको किसी ने अटेंड नहीं किया। उसने सैंडविच उठाया, शायद भूख भी लगी होगी, काश रोजे से होता। सर हैगा कित्थों दा मामला? स्लोवेनिया, वो किथे? ये पुरानी सोवियत यूनियन की रियासत थी, सेंट्रल यूरोप है, बल्कान्स की रियासत इसे कहा जाता है। बहुत खूबसूरत लेक्स और स्की रिजॉर्ट्स हैं इस मुल्क में। बहुत शानदार लेक है, ब्लड खास तौर पर। ब्लड एक मकाम है जहां पर लेक के अंदर, शदीद ठंडी लेक में गर्म पानी के चश्मे उबल रहे हैं। और लुब्लियाना इसका कैपिटल है। लुब्लियाना ही की स्ट्रीट पे ये वाकया हुआ और वो नादिम है बेचारा, लेकिन ये वो मौका है जो उसे लड़ाई के बाद याद आया। अगर पहले ख्याल आ जाता तो इसे इस्तीफा ना देना पड़ता। और हमारे यहाँ होता सर तो बाइज्जत बरी भी हो जाता। अरे यहाँ तो खैर ये सारी चीजें हमीयत का तकाजा करती हैं। हम जबानी कलामी, वो जैसे मेरे पीछे पड़ गए थे कोई बागी साहब और उनके दोस्त, जब मैंने शायरों की शान में गुस्ताखी की थी ना, कि ये वो हमीयत है जो शायरों में होती है, एकदम हम ठोंक के आ जाना और फिर थोड़ी देर बाद हवा निकल जाना। तो अब मोदी को देख लो, ये पूरे खित्ते को ये मार है। हमीयत सो कॉल्ड है। मोदी की डिग्रियां चैलेंज हो चुकी हैं। बार बार ऑपोजिशन कह रही भाई अपने आप को क्लियर करो। वो कहता है कर लो जो करना है। हाँ जी, जो कहता है वो खुद ही होता है। और वो रिकॉर्ड ही नहीं दे रहा। और हमारे यहाँ असलम रईसानी साहब, डिग्री होती है, असली हो या कहते हैं जाली। डिग्री होती है, असली हो या नकली हो। और ये बात उन्होंने बकैमी होशो आवाज की थी, कोई किसी आलम बाला में नहीं थे वो। और सुना खुद एमफिल कर रहे हैं आजकल। लेकिन जैसा भी है वो बंदा, मैंने उनकी प्राइवेट गुफ्तगू सुनी है। आई फाउंड हिम अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन। ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर देखी जाए। कॉमेडियन टाइप है। नहीं, कॉमेडी अपनी जगह पर, बलूचिस्तान के मामलात पर
रईसानीज की बड़ी नजर है, बड़े सरदार हैं वहां। और मैं सरदार होने अपनी अपनी दिलचस्पी भी होती है, लेकिन अफसोस की बात यह कि डिग्री के मामले को उन्होंने मखौल के मदार में धकेल दिया। यही कुछ इंडिया में हुआ। जर्मनी में मैं एक तफसील पढ़ रहा था, 3-4 वज़रा ने इस्तीफे दे रखे हैं। मसलन एक वजीर ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया कि उस पर प्लेजरी का इल्जाम था कि उसने अपने पीएचडी के मकाले में प्लेजरी की है। प्लेजरी को इतना बुरा वहां पे समझा जाता है, हमारे यहां बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जिसका जहां दाव लगे कमा हक्को प्लेजरी का इर्तिकाब करता है। और इवन वाइस चांसलर्स ये काम करते हैं हमारे यहाँ। अब दिल तो बड़ा चाहता है कि उनका नाम भी लें, वो किताब भी मेंशन करें। आपको याद है मैंने जो ही वो किताब पढ़ी थी, मैंने कहा इस बंदे का तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ जी, आपको याद होना चाहिए, उन दिनों हम खबरदार किया करते थे, ये तो उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। हाउ कम ये किताब कैसे लिख ली? सरासर प्लेजरी थी, बल्कि किसी बदनसीब का मकाला था, उठा के छाप दिया गया। अगर आपको याद हो तो हमारे डिपार्टमेंट में हमारे प्रोफेसर साहब एक थे जिनको मैंने अर्ज किया था कि आप भंडारी पर प्लेजरिज्म का केस करवा दें। हालांकि जस्ट द अदर वे राउंड था, वो पता बाद में चला कि भंडारी पहुंच गया केस करने। चले, उन दिनों की बातें हैं जब 2-4 चीजें जो है ना, प्लेजरी ये एक कल्चर था जिसमें कोई छपी हुई चीज है, किसी उससे इस्तेफादा किया जा सकता है, मिन्नोन भी छापी जा सकती है, लेकिन वावैन में जैसे यूसुफी साहब हमेशा कहते हैं भी मेरी लाइनें कोट जरूर करो, 100 मरतबा करो, लेकिन वावैन में करो। एक दो किताबों के बारे में तो उन्होंने कहा ये पूरी किताब वावैन में होनी चाहिए, इन्वर्टेड कॉमर्स में होनी चाहिए। अब वो भी हमारे एक दोस्त की किताब है, मैं उसका नाम नहीं मेंशन कर पा रहा, मेरी वजादारी इजाजत नहीं देती। फिर कॉपीराइट एक्ट 92 के बाद ये मामलात शुरू हुए, उससे पहले मामलात और थे, और मेरे और आपके वो प्रोफेसर 92 से पहले ये मामलात कर चुके थे। इसलिए ये अलाउंस उन्हें, इसलिए नहीं कि हमारे प्रोफेसर थे, हमने बहुत इस्तेफादा उनसे भी किया और उनकी उस किताब से भी किया। भंडारी की किताब इस कदर आसानी से अवेलेबल ना होती, लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे ये किताब लाहौर की हर छोटी बड़ी दुकान पे अगर अवेलेबल थी तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द जेंटलमैन। और उन्होंने फिर सेटलमेंट भी की थी भंडारी के साथ। चलें देखें, उसने अगर ये सैंडविच वाली हरकत की है तो मैं माफ कर देना चाहिए उसे। मैंने पता था तू सैंडविच तो बोलेगा। हो गई गलती, जैसे आपने पहले कहा कि हो सकता है उसे भूख लगी हो, कोई ऐसे मामला, तो इतनी छोटी सी गलती पे उसको। बहरहाल अब वो पकड़ा गया, पीछे से लोगों ने खप डाल दी जी चोरी करके गया। हालांकि उन्हें पैसे रखे से बेचारे ने डाल, वॉट एवर, पैसे दिए बगैर गया था वो, उसे मिनिमम यही करना चाहिए था। हमारे यहाँ उलट हो जाता है, पैसे मांग ले तो फिर आप धर लिए जाते हैं। पुलिस क्या करती है, हाँ जी बिल्कुल, जी खाना खाया, फ्रूट लिया, पैसे नहीं दिए, बंदा चुप हो जाता है, जी अब मैं क्या करूं। अच्छा ये सानू जान दो, मैं सवेरे उठ के लिस्टां भी वंडणियां हैं। तुमने सुबह उठ के हराम कमाना है, मैं तुम्हें रोक के बैठा हूं, मेरा शुक्रिया अदा करो। कल की तारीख में अगर तुम मार्केट ना जा सके तो तुम्हारे बच्चों के गले में रिज़्क़ के हराम का कतरा नहीं जाएगा। भाई मैं तो हुण ਸਕੰਜਵੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਤਾ। तो मैं इसे पिछले 10 रमजानों से डरा रहा हूं, इस पर तो चंदा असर नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि तुम थिक स्किन्ड हो, गेंडे की खाल बहुत मोटी होती है। नो, मैं डिफॉल्टर हूं नहीं, जो कुछ आप कह रहे हैं मैं करता नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं डरता। इब्लीस भी यही कुछ कहता है कि मैं गलत नहीं हूं। और ये सुम्मुन बुकमुन उम्यून हो चुका है। अच्छा मैं इनकी बात पे तो कोई अमल करूंगा, बागी तुम अपना गला भी काट दो ना, मैं नहीं करूंगा। उसने कुरान की लैंग्वेज में समझाया है कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा सीना, तुम्हारा दिमाग बंद हो चुका है, तुम गूंगे भी हो, अंधे भी हो, बहरे भी हो, और मोटे भी हो, और गंजे भी हो, और वर्ल्ड बैंक के थैले भी हो। बात तो हो रही है उस बंदे की कि जिसने वो सैंडविच चुराया है, आप फिर हमारे पे आ गए। चुराया नहीं है उसने, चुराया ही है, मैं तो इसे चुराने के जुम्मन। आप सीना जोरी करके सिर्फ इसलिए कि आप एमपी हैं, डकैती हुई सर, ये तो ये डकैती है भाई, चोरी नहीं है, डकैती है। लेकिन उसका अमल जो है वो ज्यादा इखलाकी बर्तरी का हामिल है कि उसने कहा ये मुझसे गलती हो गई और उसने रिजाइन कर दिया। ये नहीं कहा, जब शोर उठा, हाँ जी, जब उंगलियां उठने लगी, वीडियो बन गई, जब सवाल उठने लगे, ये खैरात तब बटी है जब शोर मचा है। उससे पहले तो मौसूफ घर पे बैठे सैंडविच डिकार रहे थे। हमारे यहाँ शोर मच भी जाए, लोग देख भी लें, लेकिन मानते नहीं है। हम तो, मैंने कह दिया ना, थिक स्किन्ड। बेहतरीन मिसाल देखनी हो तो इधर आइए, ये
फ्रेम में देखिए। नहीं, लेकिन अब तो सीसीटीवी आ चुके हैं भैया, और अब तू ओदे विच तो भी नहीं आप होता। छुप ही नहीं सकते किसी चीज से, हर जगह पे ये सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ यही तो जिल्लत है कि हम सीसीटीवी में भी आ जाते हैं तो फिर भी कहते हैं कर लो जो करना है। राना मशहूद आया नहीं था। राना मशहूद, उससे बड़ी मिसाल क्या है? और आखिर आके ये जी मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा था, मेरे तो लीडर का मसला था, मैं वो रिजॉल्व करवाने गया था, ये तो हमजा का लेन देन था। यानी तुम कोयलों की दलाली में अपने हाथ पैर और दीगर आज़ा काले कर रहे थे। रोज़ियां दा महीना ਅਸੀਂ माफी मांग रहे ने, कोई छोटा मोटा जुर्म कीता भी है। आप अगर तायब हो जाए ना, हाँ जी, तो मैं आपको इतना यकीन जरूर दिलाता हूं कि 80% अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल करेगा। तेरी खैर होवे। लो जी 100% क्यों नहीं? 100% इसलिए नहीं कि ये कबूलियत उसने करनी है, मैंने तो नहीं। मैं 20% का मार्जिन रख रहा हूं। सर रिकवरी भी तो होनी है अभी, ये तो नहीं कि आप पैसा खा ले, सिर्फ तौबा करते रहे, उस पैसे वो तयाशी तो- करें। वो तो लगा बंदा उसूल है। हाँ जी। माफी, तलाफी और इजाफी, अगर ये 3 चीजें करोगे अच्छा जी, तब 80% इम्कानात हैं। जी वो बरकताना महीना जी, अल्लाह माफ करने वाला है। इंशाअल्लाह माफी होगी बरकतों के महीने के सबब, लेकिन तुम्हारी माफी नहीं होगी। क्यों जी, हमारी क्यों नहीं होगी? तुम नादम नहीं हो, शर्मिंदा नहीं हो। माफी की बुनियादी शर्त नदामत है। ना तो मैंने आपके कहने पे नादिम होना है, जी आप ना हो, ना मैंने आपके कहने पे माफी मांगनी अगर है, आप ना करें, मैं कब कह रहा हूं। ना आपकी कोई बद्दुआएं असर करती हैं। यकीनन नहीं करती। साडियां तो लगनियां बदुआवां। मेरी बात सुने, आप एक औरत जात है, नहीं। मैं आपके साथ कोई बदतमीजी करना नहीं की चाहता। बदतमीजी करेगा? ए भैन मेरी एक मिनट, 1 नंबर घटिया आदमी है, 2 नंबर आ ये जखीरा भी करदा, महंगियां चीजां भी बेचदा, और तेनू खुदा ने पूछना अच्छा, आपको कैसे पता है? ओ सर सानू करप्ट करदा, थबलटू देंदा है। हाय हाय हाय, बस हुणे मैं माफी कादी मंगी है? बेशरम। अरे ये शख्स रिटार्ड है, हिला हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं जी मैं नहीं हिलिया, मैं तो अल्लाह को तौबा कर ली बस। उसका जमीर जाग गया है, अभी 2 मिनट पहले तो वो तुम्हारे साथ था। ਆਂਦੀ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋ? 4500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ। तो क्या मत पढ़ाओ। ਮਤ ਪੜਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲੂੰ ਜਿੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ ਫੀਸ। यस, अगर उसने कुछ बनना है ना, ਉਹ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਟੌਪ ਕਰਦੇ? तनूर चलाने वाला बच्चा बोर्ड टॉप कर सकता है। भैया ये एक मिसाल है, एक आध गाए बगाए सदियों सालों बाद एक आध बच्चा। सही से बताओ, तुम्हारे बच्चों ने अब तक कितने बोर्ड टॉप किए? नहीं, मेरे बच्चे तो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, वो तो टॉप तो करना, मैं तो अभी उनको उनका क्या काम है टॉप करना? उनके बाप ने उनके लिए पड़ोले भर रखे हैं मालो जर के। ये कीड़े हैं दोजख के, बिच्छू हैं, कॉकरोचेस हैं, स्नेक्स हैं, जिनमें ब्लैक मांबा भी है। जब स्कूलों में कॉलेजों में बच्चे दूसरों को खाते पीते देखते हैं, एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं। आफ्ताब नहीं तो मैं होंदे। नहीं चाहता अपने बच्चों के लिए। ਉਹ ਵੀਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। बस इसने यही किया है, इसने अपनी चपेड़े मार के अपने मुंह का भी सत्यानाश कर लिया। ਐਸ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, करंट वाली बिल्ली क्या होती ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਲੈ ਮਨਾ ਚੰਗੜਾ ਦਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੀ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਪੈਂਟ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ। जनाब 20 रुपए का रौ का गिलास आंदा और सी, तू दफा हो 20 जा। रुपए देंदे पैने की जमाना आ गया जनाब। तो गर्मी पै रही है, कोई मशरूब नहीं खालस जिंदे नाल बंदे दी सेहत बरकरार रवे। ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ आठ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ बार ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ये जो गन्ने का रस है ना मेरे भाई, सुभान अल्लाह। ये भी आपके लिए इस वक्त जिस तरीके से आपको मिल रहा है, ये जहर है आपके लिए। वो कैसे? गंदी मशीन ने जंग लगे हुए गन्ना उठाया, घर उसके अंदर हेपेटाइटिस सी होता है इससे। आप देखें नैब ने कैसा एक्शन लिया है हेपेटाइटिस डेंटिस्ट के खिलाफ। तो नैब तो हर चीज में एक्शन ले रही है वैसे। देखे ना, अब अल्टीमेटली मुझे लगता है क्रिकेट बोर्ड के मामलात भी नैब ही दुरुस्त हाँ करे। जी, आपको याद होगा पीआईए का एक्शन भी लिया था एक। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਨੈਬ ਨੂੰ ਆ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। अभी ये सिर्फ जो है ना आफ्ताब, ये डेंटिस्ट पे नहीं, ये जो हेयर ड्रेसर इन पे भी जाना चाहिए। जी जी जी। इससे भी हेपेटाइटिस, कि वही उस तरह उठाया, वही ब्लेड लगाया दूसरे को। ਤੂੰ ਐਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨਾ ਬਣ। ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਆ ਮਰੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਟਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੁੰਨੋਂ ਬਲੇਡ ਫੇਰੋ ਬੇਟਾ ਪੁੱਤ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ बेटे ਹੈ। आपको नहीं जी, पता, मेरी- गाड़ियों को
अवेयरनेस की बात है। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰਾਉਣੀ। वाह 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 वाह। जिसे मर्जी जाके जो मर्जी कहो, वो तेरी बीमार बकरी की गल किने सुननी है। वो बड़ा कनेक्टेड है, डीप रूटेड है कि वज़रा के साथ, सियासी सरकारी उम्माल के साथ बड़े गहरे मरासिम है। ਹਰ 260 ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਕੇਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਲਾਣ ਚੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। आप फिर रमजान कैसे गुजारे? मैं तो सिर्फ इन्होंने बददुआवां दे के लंगाड़े आमीन। बेसन ते 2 नंबर, लाल मिर्चा ते 2 नंबर, पीसा धनिया 2 नंबर, अनार दाने दे विच खटियाई रही कोई नहीं। और कोई नहीं ते तेरा बंदा जेड़ा वो भी 2 नंबर है। हाए ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਵਈਏ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਤਨਵੀਰਾ ਉਹ ਕਰ ਖੈਰ ਜਾ, ਮਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬਿਮਾਰ ਬਣੋਈਆ। ਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੋਟਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਖਾਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ। ਬੋਣੇ ਦੇ ਬੇੜੇ ਖਰਕ। ਆਮੀਨ। ਵੀ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਹੇਠਾਂ। ਆਮੀਨ। ਭਲਵਾਨ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਪਰਜਾਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸੇਬ ਜੁਖਾਣੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨੇ। ਕਾਣੇ ਸੇਬ ਵੈਸੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। हाँ जी, फ्रूट चाट च की पता लगता? नहीं की पता नहीं, साइडों से उतार लें क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है ना वो सेंटर में होता है। उसका जूसी पार्ट है वो निकल जाता है, उसको आप जूस में इस्तेमाल कर लें और उसके बीज फेंक दें। वो इन एनी केस आपने फेंकने होते हैं। ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈਂਦਾ ਉਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। वो भी कुक्कड़ खा लेंदे हैं, कोई रौला नहीं है। अंदर नहीं होता। सेब के अंदर जो प्रॉब्लम है वो डीप रूटेड होता है, बहुत आगे। ये अमरूद है जिसके ऊपर आपको मिल जाता है सारा कुछ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੱਕਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਬੱਕਰਾ ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। अब मैं क्या बताऊं कि मैं इनकी पर्सनालिटी की बैठे बैठे दीवानी हूं। मेरा ख्याल है पंजाब आने का मकसद पूरा तो नहीं हो। मैच के दौरान स्टेडियम में से आवाज आई हो, आमिर आई लव यू, आई होंदी ते हुण पिछड़े लगे होंदे उधर। आपको एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग ही कर रहे हैं। बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के आवांगी हवा